سب سے پہلے خبر آپ کو دے کے ڈی آئی جی ایسٹ زون اور ایس ایس پی ایسٹ کے احکامات پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف کارروائیوں میں 9 ملزمان گرفتار۔ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے مبشر حسین سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ ڈی آئی جی ایسٹ زون اور ایس ایس پی ایسٹ کے احکامات پر جو ہے وہ ضلع ایسٹ میں پولیس کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ کریک ڈاؤن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو ہے وہ مختلف مقامات پر کیا گیا۔ گزشتہ روز سے اب تک جو ہے وہ 9 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں، جبکہ 2 جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں جو متعدد مقامات پر ڈکیتی اور راہ زنی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ان ملزمان سے اسلحہ، موٹر سائیکل، چوری کیا گیا رکشہ، ساتھ ہی جو ہے وہ دیگر نشہ آور چیزیں جو ہے وہ برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ان کے قبضے سے جو ہے وہ اسلحہ اور گولیاں بھی تحویل میں لی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان کا مزید کرمنل ریکارڈ بھی اس وقت حاصل کیا گیا ہے۔ جو دیگر ساتھی جو مختلف وارداتوں میں گرفتار ملزمان کے ساتھ تھے، ان کے لیے بھی چھاپے مار کارروائیاں جاری ہیں۔ گرفتار جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی سرجانی ٹاؤن سیکٹر 6 B1 گلشن بلال کے 600 گھرانے گزشتہ 1 سال سے پانی کے عدم فراہمی کی وجہ سے بوند بوند کو ترس رہی ہیں۔ پانی کی لائن میں لیکیجز قلت آب کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ رضوان احمد کی یہ رپورٹ۔ شہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بوند بوند کو ترستے سرجانی کے مکینوں کا صبر جواب دینے لگا۔ نلکوں میں پانی نایاب اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سرجانی ٹاؤن گلشن بلال میں 1 سال سے پانی کی فراہمی بند ہے۔ مکین کہتے ہیں مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ کھارے پانی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ 1 سال سے پانی نہیں آ رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ گھر میں آتا تھا، اپنی موٹر چلاتے تھے، بھلیا کر دیتے۔ اب میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، میرے شوہر جو ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا ان کو۔ میں نے کینوں سے پانی بھرتی ہوں، میں بھی بھرتی ہوں، میرے شوہر بھی بھرتے ہیں۔ کتنی مشکل کا سامنا بتا نہیں سکتی آپ۔ آدھی تنخواہیں تو سمجھے ٹینکر میں چل جاتی ہیں، اور اس سے اتنی خارش ہو رہی ہے، اس پانی سے مطلب الرجی ہو رہی ہے، بچوں کو موشن الٹیاں لگ رہی ہیں، اتنی پریشانی کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہی اپیل ہے ہماری کہ پانی یہاں پہ دیا جائے، ہمیں میسر کیا جائے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کمپریشر اور 3 انچ قطر کی لائن جگہ جگہ سے رساؤ کا شکار ہے، جس سے سڑکیں تالاب بنی ہوئی ہیں، پر گھروں تک پانی فراہم نہیں کیا جاتا۔ ہم نے بورنگ بھی کروائی تھی، اس میں بھی پانی آنا کم ہو گیا اور سوکھ رہی ہے یہ۔ واٹر بورڈ کو بھی بولا جا کے پمپر جو پانی سپلائی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پانی آن ہو گیا، پر پانی ہم تک نہیں پہنچتا اور سارا پانی لیکیج کے ذریعے نکل جاتا ہے یہاں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ پانی کی بوسیدہ لائن تبدیل کر کے عوام کو قلت آب کے دیرینہ مسئلے سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ UC1 ماڈل ٹاؤن میں سیوریج کا ناکارہ نظام عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ مرکزی لنک روڈ، گلیاں اور بازار سیوریج کے ناکارہ سسٹم کا شکار ہو گئے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رضوان احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سیوریج کا نظام درہم برہم۔ آج بھی شہر کے بیشتر علاقوں میں بوسیدہ لائنیں تباہی پھیلا رہی ہیں۔ ماڈل کالونی کے مکین کئی برسوں سے سیوریج کے ناکارہ نظام کا شکار بنے ہوئے ہیں، جس کے باعث گلیوں اور لنک روڈ کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام لوگوں کو، دکانداروں کو، چلنے پھرنے والوں کو، مسجد برابر میں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں۔ علاقے کے سوشل ورکر ریاض خان کا کہنا تھا کہ ماڈل کالونی کے سیوریج لائنیں اپنی معیار پوری کر چکی ہیں، جن کی تبدیلی ہی دیرینہ مسئلے کا مستقل حل ہے۔ پوری مین لائن چینج ہونی چاہیے اور وہاں سے شروع بھی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ مین لائن کلیئر ہو جائے گی تو اس ایریے کا کافی ڈیولپ ہو جائے گا۔ لیکن جو ماڈل کالونی کا سب سے بڑا دیرینہ مسئلہ ہے وہ جو ہے وہ اخراج ہے۔ RCT گراؤنڈ کے پاس سے جو نالا جا رہا ہے، اگر اس میں ٹچ کر دیا جائے تو ماڈل کالونی اگلے 20 سال کو لوگ جو ہیں یہ سیوریج کا پانی روڈوں پہ نہیں دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ UC1 ماڈل ٹاؤن کا رہائشی اور کمرشل علاقہ سیوریج کے نظام سے جہاں شدید متاثر ہے، وہیں مچھروں کی یلغار سے علاقے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اوگرا کے نوٹس کے باوجود LPG کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ دکانداروں نے LPG 20 روپے فی کلو مہنگی کر دی۔ قیمت 250 سے بڑھ کر 270 روپے پر پہنچ گئی۔
काविश मेमन की ये रिपोर्ट। ओगरा की मुकर्ररा कीमत से जायद फरोख्त पर नोटिस भी बेसूद हो गया। दुकानदारों ने मनमानी करते हुए दाम मजीद बढ़ा दिए। LPG 20 रुपए फी किलो इजाफे से 270 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि हर इलाके में LPG का अलग रेट चल रहा है, घर में गैस नहीं। दूसरी तरफ LPG भी हर साल सर्दियों में 300 रुपए से ऊपर चली जाती है। अभी सवारी को रोकते बोलते हैं तो भाई सवारी बोलती है कि इतने पैसे थोड़ी होते हैं। अभी हम लोग क्या करें, मेरे को पता है। अभी जब भी आते हैं हफ्ते 15 दिन में आते हैं तो 20-30 बड़ी सर्दी में तो भाई सुनने में ये आ रहा है 300 या 320 तक जाएगा ये। तो ये इस हिसाब से तो लगता है गरीब आदमी बिल्कुल ही मर जाएगा। कभी देखते हैं तो 250 होता है, तो दूसरे दिन देखते हैं तो 260 होता है, फिर तीसरे दिन देखते हैं 270 होता है। तो समझ नहीं आ रहा। अभी बोर्ड देखा तो कल 260 था, 270 है। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत LPG की कीमतों को कंट्रोल करने और ओगरा के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। 130 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 160 रुपए किलो पर आ गया। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर गुज़श्ता इतवार 130 रुपए किलो में फरोख्त हुआ था। मटर 180 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई के फर्क ने कीमतें बढ़ा दी हैं। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। कराची में सब्जियों के दाम फिर आसमान पर पहुंच गए। रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। टमाटर और मटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 130 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मटर की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 180 रुपए किलो फरोख्त होने वाले मटर अब बढ़कर 300 रुपए किलो हो गए। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बाइस कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। जब धूप तेज़ हो जाता है तो माल इंशाल्लाह इसका जो रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सर्दी का मौसम में माल वहाँ तैयार कम हो रहे, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा माल के अंदर। जड़ में जो है माल कच्चा तैयार पड़ा हुआ है, मगर जो तैयार माल है वो इस टाइम कम निकल रहा है। इसी वजह से टमाटर का रेट जो है काफ़ी बढ़। कल 180 रुपए किलो, 160 रुपए किलो, आज 300 रुपए किलो है हड़ताल की वजह से। ये हर चीज़ ऊपर है। बुलिस्तान का थोड़ा बात माले आता तो वो नहीं आ रहे हैं, वो आज बंद पड़े हुए। और फिर यहाँ पे लोग बोले आप लोग महंगे दे रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो। जो मिसाल कल हम लोगों ने 160 कला, आज हम लोगों ने 280 कला, 300 रुपए चला रहा है। सब्जियां महंगी होने पर खवातीन इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई रिलीफ देने वाला नहीं। जी रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते। हालांकि सीज़न के टमाटर तो सस्ते होने चाहिए ना जी। सब पे भाव चढ़े हुए, डबल भाव ले रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात आवाम की पहुँच में रह सकें। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने नवंबर 2025 के दौरान शहर के मुख्तलिफ वाटर पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की बंदिश के बायस पानी की कमी के अदादो शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक नवंबर में बिजली की बंदिश के नतीजे में शहर को मजमूई तौर पर 884 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेची पंपिंग स्टेशन में 132 घंटे 20 मिनट की बिजली मअतली के बायस से 424 मिलियन गैलन पानी की कमी हुई। इसी तरह डमलोटी स्टेशन में 146 घंटे की बंदिश से 111 मिलियन गैलन पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन में पानी की कमी 335 मिलियन गैलन रही, जबकि हब और पपरी स्टेशन में 6 मिलियन गैलन और घारू स्टेशन में 2 मिलियन गैलन पानी की कमी हुई। नवंबर में मुसलसल बिजली बंदिश के बाद मरकजी पंपिंग स्टेशन पर ऑपरेशन कई घंटों तक रुके रहे, जिसकी वजह से शहर में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। हुकाम ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि मरकजी पंपिंग स्टेशन के लिए मुस्तकिल, मुस्तहकम और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के फौरी इकदाम किए जाएं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कुतियाना मेमन अस्पताल ने खिदमत खल्क की नई मिसाल कायम कर दी है। 400 से ज़ायद मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरीज और एनजीओ प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन अहमद चनाई ने कहा कि ख्वाहिश है कि इसे इंडस अस्पताल की तर्ज पर मुकम्मल मुफ्त इलाज फ्राहम करने वाला इदारा बनाया जाए। काविश मेमन की ये रिपोर्ट।
कुतियाना मेमन अस्पताल ने दिल के इलाज के शोबे में अहम संग मेल अबूर कर लिया। 400 से जायद मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरीज और एनजीओ प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए। तारीखी कामयाबी पर अस्पताल में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा कुतियाना मेमन अस्पताल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन अहमद चनाए, नायब चेयरमैन सलीम रूमी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर शब्बीर हारून और देगर ने शिरकत की। कुतियाना मेमन अस्पताल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन अहमद चनाए ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल बिला इम्तियाज शहर के लोगों की खिदमत कर रहा है। ख्वाहिश है कि कुतियाना मेमन अस्पताल को इंडस अस्पताल की तर्ज पर मुकम्मल मुफ्त इलाज फराहम करने वाला इदारा बनाया जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस्तिताअत दी कि हम इस हॉस्पिटल में जो है वो रोज़ाना 5000 से ज़ायद मरीजों का इलाज करें, और कार्डिक के हवाले से जो 400 मुख्तलिफ प्रोसीजर्स का हमने सगे मील अबूर किया है, ये भी इस बात का एक मुबलता सबूत है कि हमारा एक कमिटमेंट है, हमारा एक प्लेज है इस शहर के वासियों के साथ। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या वो हो सकती है कि लोगों का यहाँ पर कार्डिक के मामलात में बिला मुआवजा इलाज किया जाता है। सदर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन शब्बीर हारून ने भी कुतियाना मेमन अस्पताल की काविशों को सराहा और उसे मेमन बरादरी का फखर करार दिया। मैं मुबारकबाद दूंगा कुतियाना मेमन की टीम को और अहमद चनोई की, सलीम रूमी साहब, आसिफ पेंसी बहुत अच्छा काम लेके चल रहे हैं, और ये जो खिदमत है गरीबों के लिए इतने ऑपरेशंस करना, अल्लाह इनको मुबारकबाद दे। अहमद चनाए ने कहा अस्पताल 129 बेड से शुरू हुआ था जो बढ़कर 200 बेड्स तक पहुंच चुका है। बोर्ड मेंबरान और इनके खानदानों ने भी यहां इलाज करवाया है, जिस अस्पताल के मायार की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद और उनकी इबादत गाहों की बहाली के लिए पुरअज़म रुकन सिंध असम्बली और मुआवने खुसूसी डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी ने लियारी में कायम श्री राम देव पीर मंदिर की तामीर नो, तज़ीन और आराइश और नए हाल की तकमील के बाद इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर ने मंदिर में कायम की गई जदीद कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मुकामी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तालीमी सहूलियात से आरास्ता करना है। मंदिर आमद पर सदर किच्छी महेश्वरी मेगावाड़, पंचायत खिचिमन महेश्वरी और इलाका मकीनों ने डॉक्टर श्याम सुंदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुरका ने हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बरसों से इल्तिवा का शिकार मियारी बहाली का काम मुकम्मल होना एक बड़ी ज़रूरत थी। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि महकमा अक़लियती उमूर किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। कराची की सड़कों पर मौत का खेल जारी। मलीर मेमन गोर सोलंगी स्टॉप के करीब ट्रक की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाबहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाबहक शख्स की शनाख्त 23 साला वक्कार, जबकि जख्मी की शनाख्त 24 साला वाहिद बख्श के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है। ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी थी। फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। कराची में एफआई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की कार्रवाई। जालसाजी से कौमी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले बांग्लादेशी शहरी फजल उल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम था। उसने जाली दस्तावेजात के जरिए शनाख्ती कार्ड बनवाया था, जिसे बादशाह ब्लॉक कर दिया गया। मुलजिम को कराची से हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। गार्डन में पुलिस और बैनल सबाई डकैत गिरोह के कारिंदों के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान मोहम्मद सलीम उर्फ वट्टू और मोहम्मद आसिफ उर्फ मिट्ठू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों का ताल्लुक किसी गिरोह से है, जिसके चंद साथी 2 रोज कबल पकड़े गए थे। रात का आमना सामना होने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 पिस्तौल राउंड्स और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। दोनों बैंक से निकलने वाले की रैकी और सैकड़ों वारदातों के अलावा पंजाब के मुतादिद मुकदमात में भी मतलूब हैं। जख्मी मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। शहर कायत में स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट औरंगी मलीर सिटी साउथ को इलाका महफूज न रहा। मलीर सौदाबाद थाने की हुदूद से शहरी की मोटरसाइकिल चंद मिनटों में गायब। मुतासर शहरी का कहना है कि 1 महीने में गली में तीसरी वारदात है। पुलिस के पास गए लेकिन कोई ताउन नहीं किया गया। शहरी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं 5:30 बजे आया हूँ, तकरीबन 5:30 बजे आया हूँ। 5 से 10 मिनट के फ़र्क से मेरी बाइक गई है। बस मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर से नीचे आया हूँ तो देखा तो नीचे बाइक गायब थी मेरी। और ये वारदात ये हो रही है दरक्षा में ना,
ये मेरी ख्याल से एक ही दिन में दूसरी बाइक गई, तीसरी बाइक गई मेरी। कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यू ये इस तरह की वारदातें चल रही हैं और ये लोगों को यहाँ पर पुलिस वालों को मैंने बोला कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई किसी किस्म का जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मतलब ऐसा कोई जो प्रूफ वाला जो रिस्पॉन्सिबल कोई वो वाली बात नहीं दी उन्होंने कुछ भी किसी किस्म की। मतलब वो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम कर लेंगे, आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ, वो ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने अभी तक जवाब। शहर कायद में डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एसोसिएट प्रोड्यूसर के साथ डकैती की वारदात। डकैती सचल थाने की हुदूद में गुज़श्ता रात हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान ने एसोसिएट प्रोड्यूसर अली से छीना झपटी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल सचल थाने की हुदूद में एक बार फिर डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले एसोसिएट प्रोड्यूसर अली को गुज़िश्ता रात एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान ने लूट मार का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक मोबाइल फ़ोन और उनका वॉलेट जो है वो छीन लिया गया। ताहम पुलिस की जानिब से वाक़े की जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर ली गई है, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका है। ताहम पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उस मुतासरा इलाके के अंदर गश्त को बढ़ा दिया गया है, जबकि कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिमान को जो है वो जल्द गिरफ्तार करें। कराची शहर की अगर हम बात करते हैं तो आला पुलिस अफसरान की जानिब से ये दावा सामने आता है कि जराइम की शरह में कमी हुई है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कराची के 109 थानों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डकैती की, छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं, जिसको रिपोर्ट करने वाला मैं यही समझता हूँ कि कोई भी नहीं है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। शहरी जो है वो अब तंग आ चुके हैं थानों की चक्कर लगा लगा कर, और कोई रिकवरी नहीं होती, जिसकी वजह से शहरी भी अब जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन जो अगर हम रिपोर्टेड केसेस की बात करें तो रवां साल हज़ारों अब तक के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर शहरियों की लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपए की मोटरसाइकिलें और दीगर जो कीमती सामान है वो छीना झपटी के दौरान चोरी हुआ, डकैती की गई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रोज़ाना कार्रवाइयाँ कर रही होती है, पुलिस मुकाबले होते हैं, लेकिन वो मुलजिमान जेल से छूट कर जब वापस आते हैं तो एक बार फिर डकैती की वारदातें सर अंजाम देना शुरू करते हैं। ताहम अपने एसोसिएट प्रोड्यूसर अली की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ डकैती के दौरान उनको चमाटे भी मारे गए और उनको ज़दोकोब किया गया। ताहम वाक़ई की जो दरख्वास्त है वो सचल थाने में रिसीव करवा दी गई है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जी, आपको बराह रास्त से चलें। 10वें अदब फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़, दूसरे रोज़ मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला जारी। Different figures in authoritarian regimes, you find that they are silenced. And I will ask Raza to consider the possibility that these children, however powerful his account is of them, are not the passive forces in it. They emerge in the end as a society will and must emerge, whether from conflict or from peace. What is the difference in his focus between the artist and the children? Well, I think the artist is a person who is reflective of our society and the various constraints that are prevalent in our society. He is trying to struggle to bring a smile on the faces of these children who have been subjected to imperialist powers and who have been subjected to torture and genocides of various kinds. But at the same time, the artist, you're very right, towards the end, in the end, is arrested and is taken up, and it is said that he is a lunatic, whereas the children are like you read out the passage, are survivors. And I would like to convey through this book that those who have or are undergoing extreme pain and undergoing extreme pain in conflict areas
have by no means compromised, and that their struggle continues till they believe a final victory can be achieved. And yet a very strange episode happens in the book, and you could almost miss it. It isn't, yeah, I know your time is up, but we'll wind up. I want first to get some answers from him. There is the incident which also reflects Fariduddin Attar's Conference of Birds. There are 3 birds. There is a crow who is taunting and oppressive about what can be done in front of the artist. There is a pigeon which represents the Raza Rabbani figure who emerges up there and tries to tackle him and tries to stop him, but eventually flies away. And that pigeon, the conscientious objector, gets killed by a vulture. There is no reason why these birds would behave in this way unless Raza's dialectic, I don't say it's a disguised dialectic, it's a very powerful dialectic, and whatever Raza Rabbani says, ignore him at a certain level and go to the book, because the book speaks of what is Raza's inner conscience. At the end of the book, something happens. This artist holds an exhibition, and at the exhibition, everything goes wrong. There are these children who are not smiling, these portraits are speaking, they're telling the society about what's happening. That evening, the city administration swings into action, arresting Zahir and all his paintings. This act is met by a groundswell of public support for the artist. Crowds of protesters gather in front of City Hall, displaying their indignation through speeches and chants of Free Zahir. The people refuse to disperse and go back home despite repeated instructions to do so. The city administrator smells danger and, fearing violence, comes out himself to address the throng. Now, his short address is in fact the last part of the book, the last paragraph. And if you look at this and you wonder what is the purpose of Raza's book, it'll answer your question, irrespective of what Raza says. My fellow citizens, please return to your homes. If you do not do so, we shall be forced to take strong measures to preserve public order. Please understand, this city doesn't need painters, writers, or poets. Zahir is trying to blame a few instances of childhood depression on our policies. His half-baked idea that an alliance of vested interests and ruling elites has led to unhappiness, followed by poverty, injustice, widespread war and displacement, is mere fantasy. I ask you, my friends, do you see such things in our great city? If children are not smiling, it is through an act of God, not any action of government. This artist is a danger to society. He wishes to discredit us and our benefactors. Our friends may be waging war in some areas, but only for the good of humanity. Please go back to your homes. We will present Mr. Zahir to the court of law for disturbing the peace. I trust he will soon feel the heavy hand of justice and no longer trouble us with his pointless portraits of children. As he turned to leave, the city administrator added, almost as an afterthought, there are no smile snatchers here. Your artist is not a visionary, but a madman. Now I put it to you, ladies and gentlemen, is this book about something more than the children of Gaza? Your call. Well, we're waiting for his answer and we finished. Essentially, it is about children in conflict areas. But as I said, that the painter is very much a part of the book. And the painter reflects our present society and the conditions in which we are living. And to that extent, one could say that there is a duality in the book, picking up the present repressive and oppressive conditions, as also the children of conflict areas and their sufferings. Just one last comment, Raza. There's a man called Alekos Panagoulos. Have you heard of him? No. A famous Communist Party member in Greece,
who was to be executed, and Oriana Fallaci wrote her book, A Man. And that man was a man of impeccable integrity. He was subsequently killed by the junta, people believe. But that book is about his integrity. This book is about yours. Thank you for a wonderful book, which I think you should take home to your children and grandchildren so as to tell them not everybody was silent when the lights went out. Thank you. Thank you. 3 cheers for you, Raza. Thank you. Bravo, Raza. You didn't disguise your book well enough, but I don't think it was your intention. I think you wrote from the heart. Thank you. Thank you. 10वें अदब फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़, दूसरे रोज़ में मुख्तलिफ सेशंस का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़े कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान सरमायाकारों का रवैया मोहतात रहा। मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 167 पॉइंट्स बढ़कर 1,62,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। सरमायाकारों के एहतियात के बावजूद इख्तिताम सब्ज निशान पर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। सरमायाकार मुहतात रहे और 100 इंडेक्स ने मामूली बेहतरी के साथ हफ्ता खत्म किया। एक हफ्ते में 167 पॉइंट्स के इजाफे से 1,62,102 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,63,817 और हफ्तावार कम तरीन सतह 1,60,583 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते में 189 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 28 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक माहिरीन कहते हैं कि अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारे में आने की वजह से सरमायाकार पूरा हफ्ता मुहतात दिखाई दिए। फिर भी मार्केट ऊपर उतर चढ़ाव का शिकार रही। इसकी वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा पूरी तरह, क्योंकि हालत जो है सियासी हालत थोड़े से हुए हैं। तो ओवरऑल जो इंडेक्स था वो 2000 के अराउंड है ना, वो प्लस हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारा रहा, जबकि सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा था। साथ ही अक्टूबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में माहाना 4% कमी, जबकि सालाना बुनियाद पर 23% इजाफा हुआ, जो 17 करोड़ 90 लाख डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21।